Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see standard 11th economics chapter number 3 demand. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 4 of the chapter in a very detailed manner. So before starting the today's current portion, as usual, let us have a short summarization of the previous video. Previously what we have seen. So previously we have discussed about the analysis of the causes of the inverse relationship between the price and the demand. Then we have seen the exceptions of the law of demand in few goods. In that we have covered the 2 points in a very detailed manner. So let us have a brief discussion on this portion. So analysis of the price and demand's inverse relationship. Why there is a opposite relationship between the demand and the price. For that, what are the causes, which means the reason. In that we have seen two reasons, income effect and substitution effect. Income effect means whenever the income is constant. First of all, you know that we need money to purchase anything. For demanding or buying anything, we need money. But consider that the income of yours, it is constant. Constant means same. Last time also you were earning that same amount and this month also you are earning the same amount. But when a product's price falls, when the price of some product is falling, due to that what happened? The real income rises. What is the real income? The purchasing power of a consumer increases. For example, we can say that we have seen the example of the milk. When a person is earning 100 rupees, we can consider 100 rupees. For that 50 rupees he used for the milk. Okay, so 50 rupees 1 liter means when 50 rupees the price of the product of 1 liter milk is 50 rupees and the person is having 50 rupees, then he will buy only 1 liter. But certainly when the price of the goods fall, when it comes to the portion of 10 rupees 1 liter, then the person can buy 5 liter milk for that same 50 rupees. It means here the purchasing power of the consumer has increased due to the price rise downs of the product. So in this manner we can say that when the purchasing price, which means the purchasing power of the consumer rises, the real income rises. Due to that the inverse relationship can be seen up. So first of all we see when the price is getting down, he can buy more. But when the price is getting more, he can buy only less portion because the income is same. The income didn't change. If the income increases, then he can buy in the price rise also. But the income is same 50 rupees. And the price goes to 40 rupees, then what he can do? He can buy only 1 or 2 liter. So in this manner we can say that due to the income is constant, it is not changing, but the price goes up and down, the real income changes, and due to that the inverse opposite relation can be seen up in the price and the demand. Next we have seen about the substitute good. What is substitute good? First of all, the characteristics are same, the quality is same, but the quantity is also same, we can say that, but the price change in one good affecting the another good is considered as substitution effect. For example, we have seen the tea and the coffee, cold drinks and the coconut water, and the cotton, terry cotton pants and the denim means the jeans pant. So here we can say that whenever the A and B, option A and B, two are available, both are same. Same in the sense company is different. We can say that you can take the example of fridge. Okay, fridge is having the same portions. So there is a fridge of Samsung and there is a fridge of the Whirlpool. So these are the substitute. Either Samsung or either Whirlpool we can go up. But whenever if you see the price of the Samsung is getting down, what we will do? We will purchase more. And when the price of the Samsung gets more, then we will compare that Whirlpool price is less, then we will go for that portion. So here in the substitute product, which the product is having the cheaper rate,
that will be getting the demand high. So in this manner, due to the effect of one product's price down or up, the effect of the demand seen for the other product is considered as substitute effect. Even the opposite relationship is seen up here. The inverse means the opposite relationship. So we can say that these two major portions of the effect are that due to that the price is having the inverse relationship with the demand. After that, we have seen the exceptions of the law of demand, in which product the price of product changes, due to that the demand doesn't changes. That is exceptions of the law of demand. We have seen that when the price goes up, the demand comes down. When the price comes down, the demand goes up. But in certain products, when the price goes up, the demand goes up. And when the price goes down, the demand also goes down. Here it means the law of demand is not working. Which are the goods that we are going to see, or we have seen in a very detailed manner. First one was prestigious good. What is prestigious good? Prestigious good means the goods which are used as a symbol of status. As I said, BMW car, Rolls-Royce, and rather than that, the iPhone. If you are saying if it is having the highest price, then only people purchase it because they consider it shows the status. The prestige of the company is very good. The demand will be more when the price is more. But when the price gets down, the price slows down. At that moment, the people does not purchase it. Why? Because they consider the market value of the company is gone up. It is not worthy. So to show that rich status, the people go for the high price expensive goods. And when the price rise for such goods, the people buy more. And when it goes down, the people buy less. So first of all, we have seen this portion. Second is the extremely low price good. What is extremely low price good? We have seen stapler pins. Okay. Rather than that, pins, and we can say that matchsticks. These are extremely low price. Why? We can purchase it in 10 rupees, 12 rupees, 20 rupees, approximately below 50 rupees we can buy these things. So these are having a low value. When the price goes down, the demand doesn't expand, and when the price raise, then time also the demand doesn't contract. Why? Because you know that stapler pin, how much we use the stapler pin? Whenever we need it, at that time only we will use it. Particularly day to day life, we are not going to use it up. So such things, whether the price rise or goes down, the demand does not contract or expand. Contract means to get low, expand means to get more. So contraction and expansion is not seen on the demand of the price of the change due to the price change in the extremely low price good. Whether it is of 10 rupees or 8 rupees, people are going to buy on the portion how much they need. Such things is considered as the portion of the exceptions of the law of demand for the extremely low price good. So up till this we have seen in a very detailed manner. So today we are moving on to see the further portion in a very detailed manner. So let us move on with the today's portion from the PDF in the further video. So students, now let us move on with the today's portion. So today we are going to see from the portion of given goods. As you all know, last time we have seen up to the extremely low price good. So today we are going to cover up from the given goods. I am going to read it out, listen it out carefully. When price of certain goods called inferior goods fall and the real income of a consumer rises, he may reduce the consumption of such goods and substitute this by goods of a superior quality. Those goods were named after Robert Giffen, who made such observation and explained this idea. Such goods are necessary goods and are purchased by the low income good. So first of all हम ये फर्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं. यानी कभी कभी क्या होता है, सर्टन गुड्स का प्राइस जो है, सर्टन गुड्स का जब प्राइस इंफीरियर गुड्स जो बोला जाता है उसका कम होता है, तो भी लोगों की अगर रियल इनकम, व्हाट इज रियल इनकम, परचेसिंग पावर अगर बढ़ता है तो लोग उसकी डिमांड कम करते, उसकी कंजम्पशन को कम करके उसकी सब्सटीट्यूट में जो सुपीरियर क्वालिटी होता है वो ज़्यादा यूज़ करते. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था वाक बकरी एंड मिली. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में मैंने आपको ये समझाया था, वाघ बकरी और मिली. अब हम ये मान लेते हैं कि अगर वाघ बकरी का भाव जो है 50 में 250 ग्राम मिल रहा था और ये 50 में 500 ग्राम मिल रहा था, जो जिसकी लो इनकम थी, जो कम कमा रहा था, वो क्या कर रहा था, इसे खरीद रहा था. बट अचानक से वाघ बकरी ने 50 रुपीज़ में
500 ग्राम देना शुरू कर दिया, तो आपके पास अभी ऑप्शन होगा कि चलो ये 40 रुपीज 500 ग्राम आता है, अगर उसने भाव गिरा तो मिली वाला भी कम करेगा, तो ये 50 में 500 ग्राम दे रहा है और ये 40 में 500 ग्राम दे रहा है, तो आप क्या करोगे? आपकी परचेसिंग यानी ये तो 50 में 250 की जगह पे 500 आ गया, ये 40 में मिल रहा है, तो आप 10 रुपीज के लिए नहीं सोचोगे, आप क्या करोगे? फिर वाघ बकरी ही खरीदोगे। इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, अगर सर्टेन इंफीरियर गुड्स का भाव गिरता है, उस रीजन की वजह से भी अगर परचेसिंग पावर एक कंज्यूमर का बढ़ता है, तो भी वो क्या करेगा? इंफीरियर गुड्स की जगह पे सुपीरियर गुड्स जो होता है उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ये गुड्स को क्यों गिफन गुड्स बोला जाता है? तो रॉबर्ट गिफन्ट ने जो है इस कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व किया, उसने ध्यान दिया कि लोगों की जब परचेसिंग पावर बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदते, वो सुपीरियर गुड्स के लिए जाते हैं। मतलब अगर रियल इनकम राइज होता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व करके ये आइडिया हमें बताया, इसीलिए हम क्या मानते हैं कि इस गुड्स को हम गिफन गुड्स बोलते हैं। और ऐसे गुड्स कहीं ना कहीं नेसेसरी है, जैसे मैंने बोला ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में मिली नहीं बिकता है, लोग मिली नहीं खरीदते, तो ये नेसेसरी है और ये परचेज भी किया जाता है। तो किसके थ्रू परचेज किया जाता है? तो लो इनकम, जिसकी इनकम कम है वैसे लोग इसको ज्यादा खरीदते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी दैट द एग्जाम्पल ऑफ द पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विथ लो इनकम परचेसेस जुआर और बाजरा। When the price of the juar bajra falls very low, the real income of the consumer tends to increase. Hence, he will reduce consumption of such good and will purchase more of it, which is superior goods. Another example is that of vegetable वनस्पति ghee and pure ghee. So हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसे हम मान लेते हैं कि एक इंसान का जो इनकम है, परचेज उसकी इनकम बहुत कम है, उस रीजन की वजह से वो जुआर या बाजरा को खरीदता है। बट जब भी प्राइस ऑफ जुआर और बाजरा लो है यानी और कम हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा? उसकी रियल इनकम बढ़ने लगेगी। तो वो रियल इनकम अगर इंक्रीज हुई तो वो क्या सोचेगा? चलो अभी अगर मेरा थोड़े पास पैसे बच रहे तो मैं इस पैसे से वीट खरीद लेता हूँ, तो पैसे बचेंगे या उसका रियल इनकम खरीदने की जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो वो और जुआर लेने की जगह पे थोड़ा वीट खरीदने की कोशिश करेगा। तो इसे कहीं ना कहीं गिफन गुड्स का इफेक्ट माना जाता है। यानी अभी यहाँ तो क्या हुआ, यानी कि भाव कम होने की वजह से ये खरीदने की जगह वो वीट खरीदने जा रहे हैं, यानी भाव कम हो रहा है तो उसकी डिमांड भी कम हो गया। तो इस तरीके इस तरीके से कहीं ना कहीं कंजम्पशन जो है वो इंफीरियर गुड का कम देखा जाएगा और सुपीरियर गुड का ज़्यादा देखा गया। अनदर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं कि घी, ठीक है, घी में दो घी आते हैं, एक प्योर घी आता है, एक वनस्पति घी आता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे वनस्पति घी का बहुत ज़्यादा कम भाव हो जाए तो अभी लोग उसे नहीं खरीदते हुए प्योर घी को खरीदने की कोशिश करेंगे। जैसे लास्ट टाइम एक्सप्लेनेशन में मैंने बोला क्वालिटी भी कभी कभी मैटर कर देती है, और कब मैटर करती है? जब हमारे पास थोड़ा पैसा बचे उस टाइम पे हम क्वालिटी के लिए जाना पसंद करते, तो इसे गिफन गुड्स बोला जाता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट पोर्शन, स्पेशल प्रेफरेंस of people. Certain times people get very accustomed and used to certain goods. As a result, if there is some rise in the price of the goods, an individual demand may not decrease. For example, particular brand of toothpaste, shoes, etc. काफ़ी बार क्या होता है, हम कोई चीज़ से एकमस्ट मतलब आदत पड़ जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी गुड्स को यूज़ करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, उसका प्राइस कम होना या ज़्यादा होना हमें इतना इफेक्ट नहीं होता। अगर उसका भाव बढ़ भी जाता है तो अभी हमें जितना डिमांड है उतना ही डिमांड के हिसाब से हमें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर टूथपेस्ट या शूज़, हम यहाँ पे टूथपेस्ट और शूज़ दिया गया, उसके अलावा भी काफ़ी बात आती है, जैसे कि मैगी, ठीक है, मैगी 10 रुपये बिकता था, 12 रुपये हो गया, तो कितने लोगों ने खरीदना कम कर दिया, उसकी जगह ईपी में गए, कोई नहीं गया। क्यों? क्योंकि हम उसके एकमस्ट हो गए, हैबिचुअल हो गया, हमें मैगी पसंद है तो हम मैगी ही खरीदते। इस तरीके से कोई हमारा सर्टेन गुड होता है जिसके साथ हमारी हैबिट बिट जाती है, तो अगर उसका भाव बढ़ता भी है तो हम उसको ध्यान नहीं देते और हम उसके लिए
जाते और उसे खरीदते। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, जब भाव बढ़ता है तो डिमांड कम होता है। यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। अगर भाव बढ़ता है तो अभी हमें जितना चाहिए उतना तो हम खरीद ही रहे हैं। तो इस तरीके का प्रेफरेंस ऑफ पीपल का भी नोट यहाँ पे देखा जाता है। तो यहाँ पे खत्म होता है एक्सपेक्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस में हमने 4 टॉपिक देखा, जो कि चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर की तरह देखा गया। फर्स्ट था प्रेस्टिजियस गुड, फिर था एक्सट्रीमली लो वैल्यूड गुड, थर्ड था इंफीरियर गुड, गिफन गुड्स जो बोला जाता है, फोर्थ था स्पेशल प्रेफरेंस जिसके ऊपर हम डिपेंडेड रहते हैं। यहाँ पे खत्म होता है ये टॉपिक। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द फर्दर टॉपिक एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। हमने काफी बार ये पढ़ा ना, प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कॉन्स्ट्रैक्ट होता है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड एक्सपांड होता है। तो कैसे एक्सपांड और कैसे कॉन्स्ट्रैक्ट होता है इस टॉपिक के बारे में अब हम डिटेल में देखने वाले। सो लेट अस मूव ऑन एंड सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। When other determinants are assumed to remain constant and price is varied, there is expansion and contraction of demand. When price falls, keeping other determinants constant, there is an expansion in demand. Accordingly, when price rises, when other determinants do not change, then there is a constant of demand. काफी बार क्या होता है, काफी डिटर्मिनेंट्स, जैसे हमने 5 अदर डिटर्मिनेंट्स डिस्कस किए। क्या थे वो अदर डिटर्मिनेंट्स? तो व्हाट अदर डिटर्मिनेंट्स में टेस्ट, इनकम रिलेटेड टू द फ्यूचर कंजम्पशन, साइज ऑफ द पीपल एंड द पोर्शन ऑफ द प्रेफरेंस। तो ये सारी चीजें अगर चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये सारी चीजें चेंज ना होने के बावजूद जब प्राइस चेंज होता है तो उस प्राइस चेंज होने की वजह से जो डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज, जिसे एक्सपांशन या कॉन्स्ट्रक्शन बोला जाता है। प्राइस अगर गिरता जाता है तो अदर डिटर्मिनेंट्स कॉन्सेप्ट है और प्राइस सिर्फ कम हो रहा है तो क्या होता है, डिमांड एक्सपांड होता है। और अदर डिटर्मिनेंट सेम है और प्राइस अगर राइज हो रहा है तो उसका जो डिमांड होगा वो क्या होगा, कॉन्स्ट्रैक्ट यानी कम होगा। तो ये चीजें अभी हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो डायग्राम में जो है हम ये देख रहे हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, तो प्राइस देख रहे हैं। एक सेकेंड में इसको अच्छे से रख दूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बाद हमने देखा डिमांड ऑफ द कंज्यूमर कमोडिटी एंड नोट। यहाँ पे कुछ नोट भी दिया गया। सो प्राइस में सबसे पहले क्या क्या आता है, ठीक है। अगेन मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ तो ताकि आपको सारा नंबर्स देख पाए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है 5, ठीक है। 5 में डिमांड कितना था, तो 1 था। 4 में डिमांड कितना है, तो 2 है। 3 में डिमांड कितना है, तो 3 है। 2 में डिमांड कितना है, तो 4 है। 1 में डिमांड कितना है, तो 5 है। तो आप देख रहे हो जितना प्राइस कम हो रहा है उतना डिमांड बढ़ता जा रहा है, यानी प्राइस जो है कम हो रहा है, डिक्रीजिंग मैनर में आ रहा है, और डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग मैनर में जा रहा है। अगर आप उसको उल्टा देखो तो देखो 5 4 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है डिमांड। तो इसे कहीं ना कहीं जो पोर्शन ऑफ डिमांड का इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसमें कैसे देखेंगे, यानी इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे देखेंगे। सबसे पहले मिड वैल्यू 3 लेते थे। क्यों 3? क्योंकि देखो जब प्राइस 3 था तो उसका डिमांड भी 3 देखा गया, और जब प्राइस 5 था तो 1 ही खरीदा, और जब प्राइस 4 था तो 2 खरीदा था, जब प्राइस 2 था तो 4 खरीदा गया, और जब 1 था तब 5 खरीदा गया। अब अगर हम मिड पॉइंट 3 ले लेते, अब आप देखो 3 जब था भाव तब 3, जब भाव बढ़ा यानी 4 और 5 हुआ तो लोगों ने कितना कम खरीदा, 2 और 1 डिमांड कम हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड कॉन्ट्रास्ट ड्यू टू प्राइस राइज, यानी कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है प्राइस राइज होने की वजह से। कैसे? अगर आप देखो तो 3 से 5 का भाव बढ़ा तो डिमांड भी 3 से 1 हो गया। वही अब उल्टा देखो, जब प्राइस कम हो रहा है 3 से 1 में गया तो डिमांड क्या हुआ, तो ज्यादा हुआ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है नोट में, डिमांड एक्सपांड्स ड्यू टू द प्राइस इन फॉल। तो प्राइस में गिरना हुआ इसीलिए डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज क्या है, तो प्राइस चेंज होना। इफेक्ट क्या है, तो डिमांड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई एक्सिस बनाएंगे, फिर एक्स एक्सिस बनाएंगे। ये बनाने के बाद पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ करेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले सब डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। सो वाई एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस बनाया, और 0 यानी
पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमने लगा दिया। अब y में हम क्या लिखेंगे, तो y में हम लिखेंगे प्राइस। क्यों? क्योंकि प्राइस कॉस्ट है, प्राइस चेंज होने की वजह से ही डिमांड, तो कारण तो ये है। अब उसका इफेक्ट क्या देखने को मिला, तो डिमांड में चेंज, इसलिए हम उसको x में लिखेंगे। ये लिखने के बाद 5 में कितना डिमांड था, तो 5 में 1 डिमांड था, हमने उसको एलोकेट किया, सर्कल करके b लिखा, ठीक है, पॉइंट एलोकेट कर दिया। 4 में क्या था, तो 2 था, तो हम 4 में 2 लगा देते, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है बट हम लगा देते। 3 में 3 था, तो ठीक है, 3 में 3 करके हमने पॉइंट लगा दिया। 2 में 4 देखा गया, तो 2 में जो है 4 देखा गया, ओके। 1 में 5 देखा गया, तो 1 में 5 देखा गया। अब हमने ये डिमांड कर्व तो बना दिया, आपको पता है डिमांड कर्व को क्या करना पड़ेगा, तो डिमांड कर्व को ज्वाइंट करना पड़ेगा। अब इक्विलिब्रियम क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब इक्वल, एक मिड पॉइंट जो बोला जाता है, मिड पॉइंट 3 में 3 यानी कि A, तो यहाँ पे हम एलोकेट करेंगे A। अब दूसरा पॉइंट, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉन्स्ट्रैक्ट कम हुआ, क्योंकि क्यों, शुरुआत में क्या था, भाव ज्यादा था तो डिमांड कम थी, तो हम उसको डालेंगे B, यानी फर्स्ट जो पॉइंट है उसको B करेंगे, और लास्ट जो पॉइंट है यानी जो 1 उसको क्या करेंगे, हम C करेंगे, तो हमने BAC कर दिया। अब A से B हमें कनेक्ट करना है, तो A से B क्या हुआ, कम हुआ, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर अगर रे गया इसका मतलब कॉन्स्ट्रैक्ट, तो हम मान लिखेंगे कॉन्स्ट्रैक्ट ऑफ डिमांड। फिर हम A से C कनेक्ट करेंगे, A से C में क्या हुआ, 3 से 5 तक का डिमांड बढ़ा, तो इसका मतलब ये एक्सपांड हुआ, एक्सपांड हुआ का मतलब इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे डिक्रीज और यहाँ इंक्रीज देखा गया। सो मिड पॉइंट लेने के बाद ही हमेशा हमें कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपांशन देखने को मिलता है। सो इस तरीके से हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं। सो ये डायग्राम एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर एनालिसिस। हमने देख तो लिया बट उसका एनालिसिस यहाँ दिया गया, लेट अस रीड दैट एंड अंडरस्टैंड दैट इन अ वेरी वेल मैनर। In the above schedule, suppose the initial price is ₹3, then the initial demand is 3 unit, which is seen at the point A in the diagram. When price falls to 1, demand expands 5 unit, and which is shows at the point C in the diagram. The movement from the A to C demand curve DD is called expansion of the demand curve. हम ये मान लेते हैं कि particular product का इनिशियल भाव यानी शुरुआत का भाव 3 रुपए था। जब वो 3 रुपए में बिकता था तब लोग उसको 3 खरीदते थे, बट जैसे ही उसका भाव कम हुआ 2 रुपए 1 रुपए, तो जब 1 रुपया हुआ तो डिमांड क्या हुआ, 3 से 5 की ओर बढ़ा। तो ए हमने क्या किया, 3 में एलोकेट किया, सी हमने क्या किया, तो 5 में एलोकेट। तो 3 से 5 तक जो डिमांड बढ़ा है वो जो कर्व है उस कर्व को एक्सपांशन ऑफ डिमांड माना जाता है। नाउ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ए, if the price rises from 3 to 5, demand contracts from 3 unit to 1 unit, which is shown at the point B. The movement from the point A to B on the same demand curve DD is called construction of demand. अब सेम हम वापिस वही आ जाते हैं जहाँ 3 शुरुआत के टाइम में पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भाव 3 रुपए था, तब वो कितना बिकता था, तो 3 बिकता था। उसका भाव बढ़ा, 4 रुपए हुआ, 5 रुपए हुआ। जैसे 5 रुपया हुआ लोग उसको कम खरीदने हुए, 3 से 1 के डिमांड में आ गया। इसका मतलब A से लेके B का जो कनेक्टिविटी ऊपर की ओर देखा गया उसे क्या बोला जाएगा DD कर्व में, तो उसे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब कम होना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड माना जाता है। In a way, expansion and construction of demand occurs on the same demand curve. Expansion is a downward movement on the demand curve and construction is the upward movement on the demand curve. So इस तरीके से एक ही डिमांड कर्व में सबसे पहले तो हमने डिमांड कर्व बनाया, आपको याद हो तो, फिर हमने देखा कि वो एक्सपांड हो रहा है कि कॉन्स्ट्रैक्ट हो रहा है। सो डिमांड कर्व में एक्सपांशन और कंस्ट्रक्शन एक ही चीज में देखा जाता है। अब एक्सपांशन का मतलब जब वो नीचे की ओर उतरता है कर्व तो उसे एक्सपांशन बोला जाता है, और जब वो ऊपर की ओर चढ़ता है तो उसे क्या बोला जाता है, तो कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट डिस्कशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So आज हमने जो exceptions
टू डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लास्ट 2 पॉइंट्स और एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड के बारे में डिटेल में देखा. सो नाउ लेट अस हैव अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. सबसे पहले एक्सपेंशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं उसमें थर्ड पॉइंट गिवन गुड का बोला गया. सबसे पहले गिवन गुड का मतलब क्या? गिवन गुड का मतलब इंफीरियर गुड. रॉबर्ट गिफर्ट ने ये थियरी हमें बताया है, इसीलिए उनका नाम के हिसाब से इसे देखा जाता है. इस थियरी को गिवन गुड थियरी बोला जाता है, जो कि रॉबर्ट गिफन से हमें दिया गया है. रॉबिन गिफन से ये दिया गया है, बट ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स का मतलब जो भाव में बहुत कम रहते और हमेशा सस्ते देखे जाते, उसे इंफीरियर गुड बोला जाता है. जैसे ज्वार, बाजरा, वनस्पति घी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और गिवन गुड्स को इसमें इंफीरियर गुड्स के साथ कंक्लूड किया जाता है. अब रॉबर्ट गिफिन ने यह ध्यान दिया है, जब भी एक इंसान का खरीदने का रियल इनकम जब राइज होता है तो वो क्या करता है, सुपीरियर गुड्स के लिए जाना पसंद करता है, कभी भी इंफीरियर गुड्स खरीदना नहीं पसंद करता है. क्यों? जब तक उसका लो इनकम हो तब तक ही वो उसमें डिपेंडेंट रहता है. जैसे थोड़ा इनकम, रियल परचेसिंग पावर उसका रेज होता है, तुरंत वो क्या करता है, तो सुपीरियर गुड के लिए चला जाता है. मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहीं ना कहीं जो है गिवन गुड्स के अंदर काम नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा एक इंसान है जो लो इनकम के साथ सर्वाइव कर रहा है, तो वो ज्वार और बाजरा खरीद के अपना लाइवलीहुड चलाता है. बट जैसे ही ज्वार और बाजरा का और भाव गिर जाता है, उस टाइम पे वो क्या करता है, उसको ज्यादा खरीदने की जगह उसको थोड़ा कम खरीद के, या तो उसको ना ही खरीद के उस पैसे से वीट खरीदने की कोशिश करता है. तो रियल इनकम, परचेसिंग पावर जब इंक्रीज होता है तो लोग इंफीरियर गुड की जगह कहीं ना कहीं जो है सुपीरियर क्वालिटी को प्रेफर करते हैं. तो इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड जो है इंफीरियर गुड में कभी काम नहीं करता है. नेक्स्ट हमने देखा स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ गुड्स. काफी बार ये होता है कि हम सर्टेन गुड्स के साथ हैबिचुअल हो जाते हैं, यानी कनेक्टेड हो जाते हैं. हमें भले मार्केट में 10 आइटम मिलती हो, बट हम उस एक आइटम के लिए ही जाते हैं और वही एक आइटम खरीदना प्रेफर भी करते. जैसे मैंने बोला लोगों की प्रेफरेंस होती है. जैसे आप कहीं खरीदने जाओ, आपका पर्टिकुलर एक सोप होगा, ठीक है, पर्टिकुलर सेंट होगा, पर्टिकुलर कपड़े की ब्रांड होगी, तो ये सारी चीजों पे आप डिपेंडेंट हो सकते हो. तो सर्टेन गुड्स की अगर भाव बढ़ता है, ये मान लेते हैं कि आपका जो है अभी जो है मोस्ट प्रोबेबली सेंट वगैरह चल रहा है, पार्क एवेन्यू है सेंट, ओके, तो ये सेंट का भाव बढ़ा, इसमें 20 रुपीज इंक्रीज हुआ, तो क्या करोगे आप, दूसरा सेंट खरीद लोगे? नो. तो ऐसे चीजों की भाव बढ़ने से भी उसकी डिमांड चेंज नहीं होती है. लोगों को जो पसंद है वही चीज खरीदना पसंद करते. काफी बार जो है रेट इंक्रीज होने से भी डिमांड चेंज नहीं होता है, तो उसे भी कहीं ना कहीं स्पेशल प्रेफरेंस, क्यों? क्योंकि हमें वही पसंद है, हम उससे हैबिचुअल है, एक्यूस्ड है, इसलिए हमें वही खरीदना है. तो ऐसा स्पेशल प्रेफरेंस जो लोगों का होता है, वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. उसके बाद डिटेल में हमने देखा एक्सपांशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड. सो हमने एक्सपांशन एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब जब भी भाव गिरता है तब उसका डिमांड बढ़ता है. ये जो बढ़ना है, राइज होना है, इसे क्या बोला जाता है? एक्सपांशन. और जब भी भाव बढ़ता है तो उसका भाव डिमांड जो है वो कम होता है, उसे कंस्ट्रक्शन बोला जाता है. काफी बार हमने देखा बाकी के सारे कांस्टेंट सेम हो, सारे जो फैक्टर सेम हो, सिर्फ प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जो इंक्रीज एंड डिक्रीज, एक्सपांड और कॉन्ट्रास्ट देखा जाता है, उसे कहीं ना कहीं एक्सपांशन एंड कंस्ट्रक्शन डिमांड कर्व में माना जाता है. तो उसको कैसे समझे, उसको कैसे हम एक डायग्राम में एनालाइज कर सकते, उसके रिलेटेड ये टॉपिक था. डिमांड शेड्यूल हमने देखा. डिमांड शेड्यूल में लिखा था जब 5 रुपए एक प्रोडक्ट बिक रहा था तब उसे एक ही खरीदा जा रहा था, जब 4 हुआ तब 2 खरीदा गया, जब 3 हुआ तो 3 लोग खरीदते थे, जब 2 हुआ तो 4 लोगों ने खरीदा, जब 1 हुआ तो 5 लोगों ने खरीदा. ठीक है, इस तरीके. अब हम क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट लेंगे. मिड पॉइंट यानी हम ये मान लेते सपोज उस प्रोडक्ट का भाव कितना था, 3 रुपया था. जब वो 3 रुपए का बिकता था तब उसे 3 लोग खरीदते थे. ठीक है, और जैसे भाव बढ़ा, 3 से 4 रुपये हुआ, 4 से 5 रुपये हुआ, तो 3 से 2 और 1 यानी डिमांड कम हुआ. और जैसे 3 रुपए में वापिस आ जाते तब 3 रुपए से 2 रुपए भाव गया और 1 रुपीज में गया, तो डिमांड 3 से 4 हुआ और 5 हुआ यानी इंक्रीज
हुआ। इस तरीके से एक्सपांशन एंड कंस्ट्रक्शन देखा गया था। अब एनालाइज करने के टाइम पे हमें डायग्राम तो बनाना पड़ता है। डायग्राम में हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस में प्राइस दिखाएंगे। क्यों प्राइस, क्योंकि वो कॉस्ट है, प्राइस चेंज हुआ इसीलिए तो डिमांड चेंज हुआ, तो यानी यही कारण है। अब उसका इफेक्ट कहाँ दिखा, तो डिमांड में, तो वो हम वाई एक्स पे दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 में कितना बिकता था, तो 1, उसको एलोकेट किया 5 के सामने 1 और 5 के सामने एक पॉइंट रखा। फिर 4 में 2, फिर 3 में 3, फिर 2 में 4 और 1 में 5। इस तरीके से हमने बनाया। सबसे पहले हम डिमांड कर्व बना देंगे, ठीक है, इजी वे बता रही हूँ। तो डिमांड कर्व यानी ए बी सी डी ई हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, डायरेक्ट वो जो पॉइंट है उसको डायरेक्ट कनेक्ट करना है। डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने इनिशियल प्राइस क्या सोचा, हम मान लेते हैं कि ये प्राइस था, ऐसा क्या माना, तो 3 रुपीज। तो हमें क्या करना है, 3 को सर्कल करके ए लिखना है, यानी 3 वाला जो पॉइंट हमने एलोकेट किया है डिमांड कर्व में उसको सर्कल करके लिख दो ए। ठीक है, शुरुआत में क्या रेट था, तो 5 था, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 में जाएंगे। 5 में जो 1 था उसको जो हमने पॉइंट किया है उसको सर्कल करके डालेंगे बी। ठीक है, फिर लास्ट में आएंगे 1, लास्ट में क्या अमाउंट था, 1 था और उसका कितना डिमांड था, 5 था, उस एलोकेशन में देखेंगे सी। हमने क्या किया, ए बी और सी तीनों एलोकेट कर दिया। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, ए से बी तक कनेक्ट करो, ऐसा एक रे बनाओ। ए से बी तक का जब आप कनेक्ट करते हो तो ए में क्या हुआ, 3 था, 3 से 2 और 1 डिमांड कम हुआ, तो वहां लिखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। और अभी वापिस ए में आ जाओ, ए से लेके सी तक जाओ तो 4 और 5, ठीक है, यानी यहाँ बड़ा, तो इसको बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट। तो इस तरीके से डिमांड कर्व जो होता है उसी के अंदर एक्सपांशन और कॉन्स्ट्रक्शन दोनों देखा जाता है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, ए से जब बी किया था वो क्या गया था, ऊपर गया था। जो भी रो ऊपर जाता है एरो कर्व, उस कर्व को कॉन्स्ट्रक्शन मान लेने का, क्योंकि वो कम हो रहा है। और जो रो नीचे आ रहा है, क्यों, नंबरिंग कैसा था, 1 2 3 4, यानी ऊपर जाएगा, यानी उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है मतलब कम हो रहा है, तो वो कॉन्स्ट्रक्शन। और वही इस साइड क्या, नंबरिंग बढ़ रहा है, 5 6 7, अगर वो नीचे की और डाउनवर्ड स्लोप में देखा जाए तो उसे एक्सपांशन यानी बढ़ना माना जाता है। सो यहां तक का टॉपिक आज हमने डिटेल में देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.